Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you will be very well by the grace of Almighty. This is Dr. Arshad Hussain. On behalf of the students and so many requests I got, this is a continuous lecture to the previous part on communicative English. Most of the students fail to understand what communicative English means because we have so many other things in English with general English, English literature, functional English and communicative English. I will directly come to the communicative English. Communicative English is an approach to language teaching in which a student learns from real life interaction. कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश होता है जिसमें स्टूडेंट सीखता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन सच टाइप ऑफ इंग्लिश, आई विल कम टू इट. इस इंग्लिश में हम ज़्यादा तौर पे क्या पढ़ते हैं, आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ. आई विल रिक्वेस्ट में कैमरामैन टू फोकस हियर. कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे फोकस करो. दिस इज इंट्रोडक्शन. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ दिस कम्युनिकेशन स्टार्ट्स. एज यू नो, इन कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी अ सेंडर एंड अ रिसीवर. बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर देयर मस्ट बी अ मीडियम चैनल. अ सेंडर sends the codes and the receiver decodes these codes. And when the receiver sends the feedback interrupts again with the sender, the process of communication, the cycle gets complete. After that we come to levels of communication. We have mainly 3 levels of communication. It is intrapersonal, interpersonal, group discussion, etc., etc. In intrapersonal communication, it is communication within the sender, within the speaker. There is no receiver at the other side. There is one more interpersonal between two persons, between sender and receiver. After that, we read flow of communication. In flow of communication, we know that there is downward communication, upward communication and horizontal communication. In downward communication, a senior communicates with the junior. An official communicates with the peer. In upward communication, a junior communicates with the senior. And we have one more type of communication, that is horizontal communication, in which the two persons who are communicating are of same level. They are of same batch. They are colleagues. After that, I will come to verbal and non-verbal communication. These are two types of communication. Mainly when we talk about communication, there are two main types of communication. One is verbal and another is non-verbal. In verbal communication, speaking and listening is must necessary, as well as writing and reading. In non-verbal communication, gestures, moments, sign language, facial expression, this communicates a lot. This supports the verbal communication. After that, barriers of communication, hindrance in communication. We call it a barrier, disturbance in communication. It may be human-made or natural. We have physical, cultural, psychological, organizational, as well as language barriers. For instance, a person who speaks Chinese, I cannot decode those very Chinese words. It becomes a barrier here. Language becomes a barrier. Two persons are present here, the speaker as well as the receiver, the listener or the sender. But still, they are unable to communicate. The process of communication, the cycle of communication remains incomplete due to this hindrance. Because the codes, the Chinese person is speaking, I cannot decode them. They are feed in my mind. After that, cultural communication, after that psychological communication, after that organizational communication, I will come to them later. Now, another said, what we are going to read in communication is phonetic symbols. As we all know that we have only 26 alphabets in English language, but there are 44 sounds. Consonants, vowels, short vowels, long vowels, etc., etc. We read them in phonetic symbols. Then there is listening and its types. When we come to language,
4 components are important: listening, reading, writing, and speaking. The listening attitude, the listening capacity, the listening capability, and its types. Then we have reading comprehension. For a detailed discussion, I will come with some more lectures, inshallah, if like permitted, time permitted, because it takes a huge energy, huge machinery to make this video, to upload this video. And I am very thankful to my younger brothers. They are very known throughout the valley, throughout India, namely Kashmiri rounders, for their setup, who came with cameras, etc., etc. There are so many things. I don't know about this strategy, technologies. They came with all the electronic gadgets to make this video public and interesting. For detailed discussion, for detailed videos, you can watch us on Dr. Mind Coaching Academy. I request all of you to subscribe the channel, to share the videos, and to press the bell icon. The main objective, the main aim behind this video is to make some important objectives on communicative English, because especially the college level students of first semester, they have to deal with this part. I will come with the main basic objectives. Maybe, inshallah, as per my experience, these questions may be asked in the examination. I hope so. I hope so. And as per the experience, as per the knowledge, I hope most of the questions will be asked in the examination. I request my cameraman to upload the PDF copy of those very objectives. They will be helpful to all the students in general and to college students in particular. Thank you very much. Remember, the name of the channel is Dr. Mind Coaching Academy. We are coming with some more videos from 10th class, 10th, 11th, 12th, for NEET as well as for college students. We are working on it. As I told you that it takes a lot of time and energy. And by the grace of Allah, we have succeeded at least 50% in it. Maybe from the next week, there will be video on each and every lecture available on the channel, and especially for the persons, for the candidates, for the aspirants who have submitted their application forms for JKSSP examinations, whether it may be account assistant, patwari, etc. There will be special videos on those very aspects as well. Thank you very much. Thank you. Question first is like this: communication is a non-stop dash. Communication is a non-stop process. ये पेपर नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, प्लान नहीं है. Right answer is process. Question second: communication is a part of dash cycle. Communication किस सिकल में आता है? ये सॉफ्ट सिकल्स में आता है. ऑप्शन ए राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3: द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज. कौन ट्रांसमिट करता है? ट्रांसमिट मीन सेंड ऑफ, भेजना. कौन भेजता है मैसेज? सेंडर भेजता है. किसको? रिसीवर को. क्वेश्चन नंबर 4: डैश इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स एंड अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज. कौन शख्स डिकोड करता है मैसेज को? सेंडर क्या करता है? कोड सेंड करता है. डिकोड उसको रिसीवर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 5: मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रेस्पॉन्स ऑफ. किसका रेस्पॉन्स कौन करता है मैसेज में? रिसीवर करता है. सेंडर सिर्फ सेंड करता है, रिसीवर रेस्पॉन्स करता है. द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड. जब सेंडर कि मैसेज को रेस्पॉन्स मिल जाएगा, रेस्पॉन्ड कौन करेगा? रिसीवर करेगा. उसको हम फूड बैंक नहीं कहते हैं, उसको हम फूड नहीं कहते हैं, बैक नहीं कहते हैं. ऑप्शन बी फीडबैक कहते हैं. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7: डैश कंटेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. उनमें फिजिकल रिलेशनशिप होती हैं. जब सेंडर सामने होता है, रिसीवर सामने होता है, तो एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है उनमें. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Dash context refers to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver. जब सेंडर और रिसीवर के बैकग्राउंड सेम होते हैं तो दे आर अटैच्ड टू वन अनदर कल्चरली. कल्चरल बॉन्ड होता है उनमें. बिकॉज when we come to the term of culture, it means manners,
राइचुअल्स, लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा उनका सेम होता है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. डैश डैश रेफर्स टू दीज फैक्टर्स दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन. कौन कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है, कौन कम्युनिकेशन में एक रुकावट बन जाता है. अगर शोर होगा बाहर से तो कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है. एनवायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज डैश डैश नॉइज. एनवायरमेंटल बैरियर सेम होते हैं फिजिकल नॉइज जब होता है. आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन है. जैसे मैंने बता दिया आपको कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, वर्बल नॉन वर्बल. वर्बल मीन्स व्हेन वी यूज वर्ड्स इन रिटन और एज वेल एज ओरल फॉर्म है. लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने बताया ड्रेस कोड आता है, गेस्चर्स आता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 12. कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स डैश डैश एंड डैश डैश रिलेशनशिप. अच्छा, ये इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगा, इज लिखा है वहाँ पे, इन एन ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को कौन स्ट्रेंथ करता है, कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. डैश डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्यून ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन. किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. जैसे मैंने बता दिया वीडियो के आगाज में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स आते हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. When there is similarity of background between the sender and the receiver such as age, language, nationality, religion, gender, उनका जब सेम होता है तो कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्टिव इसी के रिलेटेड पीछे भी था तो उसमें ये फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेम. क्वेश्चन नंबर 15. लेटर, ईमेल, टेलीफोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ. लेटर किसी को हम लिखते हैं, ईमेल करते हैं किसी को, या टेलीफोन के जरिए कोई मैसेज सेंड करते हैं. टेलीफोन यहाँ पे क्या बन जाता है, चैनल. जैसे मैंने बताया था आपको सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक चैनल होता है. यहाँ पे लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग और टेलीफोन बिकम ए चैनल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. अंडरस्टैंडिंग डैश डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच forms the base of learning grammar. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वेरी इजी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. It is of paramount importance that one needs to construct a dash dash sentence in the day-to-day affairs. हर किसी को चाहे तकरीबन एक करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस लिखे हर दिन. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. A dash dash is defined as the name of person, place और thing. पर्सन और प्लेस के दरमियान एक कामा अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा. यहाँ थोड़ा सा जल्दी में बोल चुके हैं हम. तो किसको हम नेम ऑफ पर्सन, प्लेस पहले से ही हमने सुना है, नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है. क्वेश्चन नंबर 19. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद डैश डैश लेटर. प्रॉपर नाउन्स हम किससे लिखते हैं, अपना नाम हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium. किस मीडियम से हम, जो हमारा मीडियम रहता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उससे हम चैनल बोला करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. The nouns which can't be felt, seen or heard. ऐसे nouns जो हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट nouns कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. The information which is transferred to the receiver has to be interpreted. This process is called. जब इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाती है, रिसीवर के पास, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग. वो उन कोड्स को डिकोड करता है. कोड्स कौन भेजता है, सेंडर. डिकोड कौन करता है, रिसीवर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए. ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए. हर किसी कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स का होना जरूरी है, क्योंकि उसमें स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है. कई ऐसी कम्युनिकेशन होते हैं जिनका एंड नहीं हो सकता, इसलिए हर किसी कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स का होना जरूरी है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. Personifications of strength and violence are considered as dash dash gender. जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं, जब हम उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, हम उसको क्या मैस्कुलाइन मानते हैं, फेमिनाइन मानते हैं, कॉमन मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, हम उसको मैस्कुलाइन मानते हैं. ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. द मैसेज मे बी इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ. नहीं, उसमें लिखना है द मैसेज मे नॉट बी. क्वेश्चन नंबर 25 इज लाइक दिस. द मैसेज मे नॉट बी, द मैसेज मे बी मिस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ. नहीं, ठीक है, मिस इंटरप्टेड उसको नेगेटिव बना देता है.
किस तरह से मिस इंटरप्ट मैसेज होती हैं, किस तरह से हम मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई बैरियर होगा, जैसे हमने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, द एनवायरनमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी, किस एनवायरनमेंट में ये जो सेंडर रिसीवर रहने चाहिए, एनवायरनमेंट कंपैटिबल होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द क्रिश्चियन साइन ऑफ डैश डैश इज अ गेस्चर पर्टेनिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस कैसे, उनकी साइन क्या है, जैसे वो रिलीजियस शो करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा उनका वो जो क्रॉस लगा होता है वो उनकी साइन है, उनकी रिलीजन की साइन है। दिस इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट, ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी क्या मिलता है, रिएक्शन रेस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसमें हमने ए लिखा है बट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स डैश डैश टू व्हाट इज बीइंग रिलेटेड, व्हाट इज बीइंग सेड है, उसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिएक्शन हमें जल्दी मालूम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, while talking to friends you don't pay attention to the signals of direct communication, ओरल कम्युनिकेशन के लिए हम अगर हमारा दोस्त बात करता है उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो हमें रिटर्न कुछ भेजेगा हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, व्हाट इज बीइंग सेड क्या कहा जा सकता है, तो इसलिए द राइट आंसर इज ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 31, इन ओरल प्रेजेंटेशन आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट फर्स्ट गिव द ऑडियंस अ डैश डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑडियंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक क्या देते हैं हम उनको पहले बैकग्राउंड देते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन, हर कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की मीनिंग को ऐड करता है उससे हम एडजेक्टिव बोला करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अ डैश डैश इज अ वर्ड व्हिच कनेक्ट्स वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस और सेंटेंसेस, एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स फ्रेजेस को कनेक्ट कर देता है उससे हम इंटरजेक्शन बोला करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, it is important to consider proper dash dash room where you are giving your presentation, एक ऐसा रूम जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे लाइटिंग, हाँ ऑप्शन बी एंड सी में अक्सर कंफ्यूज होता है, लाइटिंग इज समथिंग डिफरेंट है गरज ना, तो लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, डैश डैश लिसनिंग मीन इज लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन, जब हम कन्वर्सेशन गुफ्तगू से कोई चीज़ जान लेते हैं समझ लेते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन को क्या बोलते हैं, ऐसी लिसनिंग को क्या बोलते हैं, सॉरी इसमें डायलॉजिक लिसनिंग बोला करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, इन डैश डैश लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स इज आइडेंटिफाइड, हाँ किस लिसनिंग में हम ये जो साउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हम उनको पहचान देते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, चार एक्सक्लेमेशन चार उसने ये पंक्चुएशन मार्कर्स लिखे हैं, नंबर 1 नोट ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन के पीछे लगता है, नंबर 2 पीरियड लगता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर पे लगता है, नंबर सी कामा हमें सेम लिस्ट ऑफ थिंग्स को ये सेपरेट करने के लिए कामा इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन डी इज द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड, इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिक लिसनिंग भी उसको बोला करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द डैश डैश इज द रिएक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट ऑकर्स इन द सेंटेंस, कौन कहता है हमें, प्रेडिकेट, इस सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, द डैश डैश स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हम किससे कहते हैं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ी होगी उसमें जो इन्वर्टेड कामाज में जो हम पार्ट रहता है, जो डायरेक्ट स्पीच में रहता है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, पहला वाला जिसे हम कहते हैं जो कामाज में नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामाज में रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोला करते हैं। ये डायरेक्ट में हमें देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट में नहीं देखने को मिलता है। Nouns that end in y but have a consonant before y form their plurals by dropping y and adding, ऐसे nouns जो y पे एंड होते हैं लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एग्जाम्पल मैं देता हूँ बेबी, BABY, यहाँ y से पहले b है, b कॉन्सोनेंट साउंड है, ऐसे वर्ड्स को अगर हमें प्लूरल बनाना हो हम ऐड क्या करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, IES ऐसे वर्ड्स के लिए हम ऐड करते हैं। ए एंड एन आर डैश आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं कौन कौन होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोला करते हैं, द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोला करते हैं, यहाँ ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43,
हियरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, जब हम कोई चीज सुन रहे हैं, लिसनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44, इन डायरेक्ट लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी एप्रिशिएटेड। उसको हम एप्रिशिएटिव, ऑप्शन बी एप्रिशिएटिव लिसनिंग बोला करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, dash is an aggressive behavior and will mostly likely bring a negative response from the speaker। कौन एग्रेसिव बिहेवियर किसको माना जाता है? जब स्पीकर बात करता है और लिसनर इंटरप्ट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जब स्पीकर बात करता है हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद हमें अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, it is important to choose the right environment because it will help the listeners focus and avoid। कौन सा environment हमारे पास होना चाहिए? It is important to choose the right environment because it will help the listener focus and avoid। हाँ, ये उसको डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी कम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन डैश वर्ब द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। किस में हमारे पास दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और एक इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ऑप्शन बी में अनट्रांजिटिव है, इट इज इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन पास होती है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, डैश रेफर्स टू टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन हम किस में पढ़ते हैं? टाइम, टेनिस से निकला है, ये हमें टाइम बताता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, रीडिंग कंप्रहेंशन मीन इज अंडरस्टैंडिंग अ डैश टेक्स्ट। हम किस चीज को रीड करते हैं? जो हमें ओरली कहते हैं वो तो नहीं हम रीड करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन जो होती है उसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस। रीडिंग कौन सी है? कौन रीड करेगा? अरे मैंने लिख के दे दिया, मैं मान लो स्पीकर हूं, मैंने लिख के दे दिया, अब कौन रीड करेगा? ये जो रिसीवर होता है ये रीड करेगा, यानी कि वो डिकोड करेगा इस मैसेज को। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाइल मेकिंग ए स्लाइड द नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश पर स्लाइड। जब हम स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो स्लाइड पर हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड पे 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10। Question number 52, a group of related words that contain both a subject and a predicate। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो उससे हम क्लास कहते हैं। क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट है, फ्रेज में हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता। जैसे मैं इन ए कॉर्नर बोलूंगा, लेकिन क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट एक होता है। Question number 53, when we read shorter texts like research papers for specific detailed information, we read slowly and with a lot of concentration। This is called digest reading। जब हम कोई छोटी सी टेक्स्ट पढ़ते हैं हम उसका माने जानने की कोशिश करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन फुल रहती है, हम उसको सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं बल्कि वी गो इनसाइड द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के बिल्कुल तह तक जाते हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग बोला करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे रीडिंग इज डन। हमारी जो डे टू डे रीडिंग होती है ज़्यादातर हम साइलेंटली रीड करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 55, dash is nothing but checking whether we have followed the earlier stages promptly and efficiently। हम उसको रिकॉल बोला करते हैं। रिकॉल मीन्स याद करना, पिछला जो हमने पढ़ा था उसको जहन में याद करना, उसको जहन में फिर से लाना। क्वेश्चन नंबर 56, हियर द फॉर्मेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव चेंज। यहाँ थोड़ा फॉर्मेट दूसरे टाइप का बना है। 56, डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। जब आप अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जब आप अल्फाज नहीं कहते हो लेकिन कम्युनिकेट करते हो, उससे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57, डैश डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, दे आर नॉन वर्बल। नॉट वर्बल, नॉन वर्बल होता है, उससे हम पैरालैंग्वेज बोला करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, डैश कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर। कौन सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करता है? चैनल। उनमें एक मीडियम होता है जिसे हम चैनल बोला करते हैं। ये सेंडर को किसके साथ
कनेक्ट करता है रिसीवर के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट बट वन, मोस्ट ऑफ अस यूज डैश डैश एंड डैश डैश इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन वी स्पीक। एक तो हम जब हम बात करते हैं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, डैश डैश मीन्स लुकिंग क्विकली और a text to get a general superficial idea or the surface meaning है। थोड़ा सा जब हम जल्दी जल्दी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए कि टेक्स्ट में क्या लिखा है, उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोला करते हैं। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग बोला करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। थैंक यू all of you. I hope that you will enjoy this lecture. These are the most common objectives on communicative English and most frequently asked in the examinations. Thank you very much.